everyone, this is Prince Chauhan and today we are starting exercise 4.3 of grade 9. So in this exercise we are going to learn that how to draw the graphs of given equation. Means यानी कि इस एक्सरसाइज में हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं ओके जो कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं जिनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ये हम इसमें सीखेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज x plus y is equals to 4. Okay, so first is x plus y is equals to 4. So as we know that a linear equation in two variables has infinite solution. यानी किसी एक linear equation in two variables के पास multiple और बहुत सारे solutions होते हैं. Okay, तो first we will find out any two or three solutions of the given equation. ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक यहाँ टेबल ड्रॉ कर लेता हूं x और y. ओके, अदरवाइज टू सॉल्यूशंस आर सफिशिएंट टू ड्रॉ द ग्राफ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ विल आई डू दैट आई एम पुटिंग हियर x इक्वल्स टू 0. यानी इसमें से इस इक्वेशन में हम x की जगह पर हम 0 लगा देंगे. ओके, तो लेट्स पुट हियर 0 दैट x is equals to 0. when we'll put 0 in this, what we will get? Okay, so this is 0 plus y is equals to 4. That means y is equals to 4. Means जब मैंने x की वैल्यू इसमें 0 लगाई तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है? 4. The value of 4 is y here. So let's put here 4. So this is the 0, 4 is the first solution of the given equation. Similarly, I'll take here this time y is equals to 0. अगर आप चाहते हैं तो x की जगह पर ही कोई और वैल्यू लगा सकते हैं, but to make it simple, I have taken this time y is equals to 0. So let's put here y is equals to 0. At y is equals to 0. So I am all those values I am putting in the same equation. यानी मैं ये जो equation मुझे given है, मैं इसी equation में सारी values को put कर रहा हूँ. Okay. So now let's put here y is equals to 0. So x is same and y is 0. That is equals to 4. So from here x will be equal to 4. That means at y is equals to 0, the value of x is 4. So I'll write the same y 0 and x is 4 from here. So I'm putting the same here. Similarly, this time for third solution, you can put any value of either x or for y. तो मैं जैसे x की जगह पर यहाँ पर 1 लगा देता हूँ. Okay, so I'm doing here that at x is equals to 1. Okay, so let's put the value in this. That x is 1 plus y is equals to 4. So 1 you will send to other side. So y is equals to 4 minus 1 and y is equals to 3. That means at x is equals to 1, the value of y is 3. So these are the solutions of the given equation. So similarly, as I told you that a linear equation in two variables has infinitely many solution. Okay, तो ऐसे ही आप इसके बहुत सारे solution भी निकाल सकते हैं. But here 2 or 3 solutions are sufficient to draw the graph. So now I'll show you how to draw the graph by using the same 3 solutions. Okay. So here I have drawn the graph. यहाँ मैंने graph draw कर लिया है. Now I'll use these solutions to draw the graph of this given equation here. So let us take the first coordinate which is 0, 4. यानी कि x 0 है और y 4. x 0 और y 4 means ये point है. तो मैं यहाँ point mark कर देता हूँ. This is your 0, 4. This is your first point which I have marked here. Similarly, next is 4, 0. यानी x पर 4 और y पर 0. तो x पर 4 यानी यहाँ पर और y 0 means यही point हो जाएगा. This is your 4, 0. This is the another point. And third is 1, 3. That means x is 1 यानी कि x1 is here and 3 means here. तो x okay in front of 3. So this is the third point. Now we have 3 points. One is here, second is here, and third one is here. So we will join all these 3 points. So let's join these 3 points, and we can extend this as much we want. जितना हम चाहते हैं उतना हम extend कर सकते हैं. So this is the graph of this given equation. यही जो हमने ये draw किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये ग्राफ है. ये हम चाहते हैं तो उसका एक नेम भी दे देते हैं यहाँ पर. जैसे कि मैंने इसको A, इस पॉइंट को A, इसको B और इस पॉइंट को मैंने C बोल दिया है. तो ये लाइन जो है मेरे ग्राफ है इस इक्वेशन का. सो आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ of the given equation. Similarly, for the next equation, you will first of all find out the solution in the same manner, and then you will be able to draw the
graph. So this was question number 1. Now let's start question number 2. Now in question number 2, one point is given to us. That means एक point है, उसके coordinates हमें given है और उस coordinate को ही हमें use करके कोई भी दो equation बतानी. So we have to tell any two equations, okay, that is passing from that point, and that point is 2,14. Okay, so this is the point from which two lines are passing, and we have to write the equations of those two lines which are passing from this point. So as we all know, the first point is for x, यानी जो first point है वो हमारा x का होता है और जो दूसरा point है हमारा किसका होता है y का. तो I have to give an equation, okay, which must be satisfied by this values of x and y. तो मुझे एक ऐसी equation लिखनी है जिसमें का ये सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी ये वैल्यूज है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. तो मैं आपको बताता हूँ कि इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं. ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ x प्लस वाई. मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस वाई. अभी ये इक्वेशन पूरी नहीं है, अभी मैं इसको केवल आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है. ओके, तो जैसे आपने यहाँ पर x प्लस वाई लिख दिया है, अब जरा ये वैल्यूज हम इस पर पुट करके देखते हैं. ओके, वी विल जस्ट ट्राई बाय पुटिंग दीज वैल्यूज दैट व्हाट वी आर गेटिंग हियर. सो x इज 2, दैट मींस 2 plus y is 14, so let's put here 14, and we all know 2 plus 14 is 16. So what we will do in RHS, we will put here 16. तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो पूरी हो चुकी है. अब आप इसको देखेंगे, अगर ये वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगी. सेटिस्फाई मींस on using these values of x and y, the LHS and the RHS will become equal to each other. अब जैसे अभी आपको मैंने दिखाई दिया था 2 plus 14 will become 16, and 16 and 16 both are equal to each other. That means this is your first equation. Okay, similarly what we can do, let's take here x minus y. Okay, तो फिर से अभी ये इक्वेशन पूरी नहीं है, तो जरा इसमें वैल्यू पुट करते हैं. लेट्स पुट दिस वैल्यू इन x minus y. So I'll get here 2 minus 14 which will be equal to minus 12. यानी ये किसके इक्वल होगा? 2 minus 14 will be equal to minus 12. तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन के सामने ही मैं लिख देता हूँ minus 12. So this is your second equation. So now if you will put these values in this, okay, then this equation will be satisfied by these values. Okay, अगर आप चाहेंगे तो उसको मैं दिखा देता हूँ करके. x is 2, that means let's put here 2 minus y is 14, and let's solve the LHS part only. Okay, we are just solving the LHS part. हम केवल LHS ही solve कर रहे हैं. तो 14 minus 12 is minus 12. So 14 minus 2 is minus 12, and RHS is also the same. जो हमारा RHS है वो भी same है, minus 12. तो in this way we can say that this is the solution of this equation also. Okay, ये भी इसका solution हो गया. तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. तो वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें केवल 2 ही इक्वेशंस देनी थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि और इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं. जैसे मैंने इसके साथ साथ एक मैंने लिख दिया 7x. ओके, जैसे मैंने लिखा 7x. अगर जरा 7 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे क्या आएगा 7 into 2 यानी कि 40, और हमारा y भी 14 है, तो मैं इस इक्वल में y लिख दिया है मैंने इसके. अब ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई है. ओके, 7x is equals to y. ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई. अगर मैं x और y की वैल्यूज में पुट करता हूँ, then I'll get the LHS and RHS same. So this is my third equation. Similarly, if you want, you can find out the other. If you can write other equations for the same values of x and y, तो आप और भी इक्वेशन इसकी लिख सकते हैं. तो ये तो हो गया हमारी इसकी इक्वेशन. क्वेश्चन हमसे 2 पूछी थी, हमने 3 कर ली है. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या इसी पॉइंट पर और भी लाइंस आकर आ सकते हैं. ओके, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें ये पूछा है उसने हमसे, तो हम इसका बताएंगे कि इस पर बहुत सारी लाइंस आ सकती हैं. जैसे कि आपने इससे पहले की क्लास में ये भी पढ़ा होगा दैट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, यानी कोई सिंगल पॉइंट है, या मैं आपको जैसे ग्राफ से बता देता हूँ. सपोज कर लीजिए ये आपका ग्राफ है और ये जो 2,14 है वो यहाँ पर है. सपोज कर लीजिए ये 2,14 का पॉइंट है यहाँ पर. तो इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, हमने पहले ही पढ़ रखा है. ओके, दैट मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट हियर. ओके, एंड रीजन वी ऑल नो वेरी वेल, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, इसलिए इससे बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2. सो आफ्टर दिस यू विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज that if the point 3, 4, मैं मूव कर लेता हूँ 3, 4,
So if this point 3 comma 4 lies on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7, means 3y is equals to ax plus 7, यानी कि अगर ये पॉइंट, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, कि अगर ये पॉइंट है ओके जो कि लाई करता है इस इक्वेशन पर, इसी इक्वेशन के ग्राफ पर अगर ये लाई करता है तो आपको बताना है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ ए, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए व्हिच इज ओके हियर बाय इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ओके तो हम क्या करेंगे, अगर ये इस पर लाई करता है तो इसका मींस इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो लेट अस पुट दीस वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस गिवन इक्वेशन, यानी कि इसमें जो x है हमारा वो 3 है और y है हमारा 4, तो मैंने x और y लिख दिया, ठीक है। सो लेट्स पुट दीस वैल्यूज हियर। सो 3 into y is 4, so let's put here 4, and a into x is 3, so put here 3 plus 7, so let's solve 3 4 times 12, and this is 3a and plus 7, so let's send this 7 here, at 12 minus 7 is equals to 3a, and 12 minus 7 we all know very well what is 12 minus 7, that is 5, so 5 is equals to 3a, we can also write 3a is equals to 5 and a is equals to 5 upon 3, that means the value of a here is 5 upon 3. Okay, so this is the question number 3. Next is question number 4, but before starting the question number 4 I'll give you one example here. Okay, आप सपोज कर लीजिए कि आपको किसी अपने रिलेटिव के घर जाना है। ओके, यू वांट टू गो टू रिलेटिव्स होम। ओके, आप अपने किसी रिलेटिव के घर जाना चाहते हैं एंड द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू योर रिलेटिव्स होम इज 50 किलोमीटर। सो आई एम राइटिंग हियर लेट्स द डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर्स। ओके, एंड ऑब्वियसली टू रीच टू योर रिलेटिव्स होम यू विल बी हायर एनी व्हीकल, यानी आपको कोई व्हीकल हायर करना पड़ेगा। ओके, अगर आपके पास कोई अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है, सपोज कर लीजिए आपके पास अपना कोई पर्सनल व्हीकल है जो कि अवेलेबल नहीं है, ओके, तो आपको कोई एक टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। ओके, एंड द टैक्सी ड्राइवर टोल्ड यू अबाउट द चार्जेस दैट द फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि जो सबसे पहला किलोमीटर होगा उसके लिए तो आपको वो 10 रुपीज चार्ज करेगा, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए 10 रुपीज, और बाकी के जितने भी किलोमीटर आप ट्रेवल करते हैं अलग से, ओके, उसके लिए वो आपको केवल 8 रुपीज पर किलोमीटर ही चार्ज करेगा। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर एंड फॉर फर्स्ट किलोमीटर ही विल बी चार्जिंग यू ₹10। तो यानी हम बिल कैलकुलेट कर रहे हैं कि कैसे बिल, कितना बिल आएगा मीटर से। ओके, यानी फर्स्ट किलोमीटर तो उसने आपको चार्ज कर दिया 10 रुपीज। ओके, नाउ अब फर्स्ट फॉर द रिमेनिंग किलोमीटर्स ही विल बी चार्जिंग ₹8 पर किलोमीटर, यानी कि जो रिमेनिंग किलोमीटर्स हैं उसके लिए वो आपको 8 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही चार्ज करेगा। तो 1 किलोमीटर तो यहाँ हो गया, अब किलोमीटर्स बचते कितने हैं, वो बचते हैं 49। तो यहाँ यानी कि मैं इस 49 को लिख देता हूँ 50 माइनस 1, क्योंकि 50 माइनस 1 मैंने क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर तो उसका यही हो चुका है, या हम डायरेक्टली इसकी जगह पर 49 भी लिख सकते हैं। तो ये जो 49 किलोमीटर्स हैं इनका वो चार्ज लगाएगा केवल 8 रुपीज पर किलोमीटर से। तो इसका हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारा टोटल बिल आ जाएगा कि कितना बिल हमारे पास हमें इसको चार्ज करना पड़ेगा टैक्सी ड्राइवर को। सो सिमिलरली वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 8. If you would have understood this example, you can understand the question number 4 very easily. So let's see what is question number 4. That the taxi fare in the city is as follows. That the for the first kilometer the fare is ₹8. यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें पे करना है ₹8. Okay. And for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. So taking the distance covered as x किलोमीटर, यानी कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो डिस्टेंस है that is x किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो हमने सपोज कर लिया है x किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, एंड टोटल फेयर एज ₹y, और ये टैक्सी का जो फेयर है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल फेयर इज ₹y. Okay. Then after write a linear equation for this information and draw its graph. Okay, so first of all we will write down the equation for the given information. So for the first kilometer he is charging ₹8. That means for first kilometer we will have to pay 8 rupees, यानी फर्स्ट किलोमीटर का तो हो गया। तो अब
डिस्टेंस बची कितनी, हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर लेफ्ट, यानी कितने किलोमीटर बचते हैं। तो उस x में से 1 किलोमीटर का तो हो गया रुपीज 8, यानी कि डिस्टेंस बचती कितनी है, x माइनस 1। सो दिस इज द डिस्टेंस लेफ्ट। सो फॉर दिस डिस्टेंस ही विल बी चार्जिंग रुपीज 5 पर किलोमीटर, यानी कि इस रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए वो चार्ज करेगा 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो इसका हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल बिल, यानी जितना हमें इसको पे करना है, जो कि हम इसको पहले ही सपोज कर चुके हैं, विच इज y. So this is the that's 8 plus 5 into x 5x minus 5 into 1 5 is equals to y. So now this is 5x. I am just first of all writing the variables, यानी पहले मैं variables लिख लेता हूँ. So this is 5x and y will come here, it will become minus y, and 8 minus 5 will become plus 3 is equals to 0. So this is the required linear equation for the given information. Okay, after this we have to draw the graph for the same equation, so that I think you all can do by yourself how to draw the graph by taking the solution. First of all we will find out the solution for this, यानी इसके हम solution निकालेंगे पहले 2 या 3, तो उसके बाद इसको ग्राफ पे हम ड्रॉ कर देंगे. तो I think at last question 1 2 3 4 you will be able to solve very easily. At last I would like to say thanks for watching.